Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your maths teacher from Hira Public School, Fatgudiya, Ambari, Azamgarh. Dear students, in previous video we have solved problems of chapter first, and in today's video we are going to learn about addition, which is in chapter number second. So before going to the chapter, we will clear concept of addition. मीन्स एडिशन का कॉन्सेप्ट है क्या, एडिशन होता क्या है ना। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट यू हैव थ्री मार्बल्स, 1 2 3। मार्बल मीन्स क्या होता है बेटा, गोलियां जो आप लोग खेलते हैं ना। एंड योर फ्रेंड गिव्स यू 4 more मार्बल, 1 2 3 4, and if you were asked now how many marbles you have in total, अब आपके पास टोटल कितने मार्बल हो गए, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। in this way 1 2 3 you have to put one sign, this is called plus, and 1 2 3 4. now 1 2 3 4 5 6 7 marbles. now you have 7 marbles. This process is called addition. Addition of number or things. Okay, so students, addition means putting the things together and counting again. Means in first example we have taken 3 marbles and 4 marbles. Okay, so this is first things and this is second things. Okay, so this is 3 marbles, this is 4 marbles. If we put 3 marble and 4 marble together, then it will become 7 marble. 1 2 3 4 5 6 7. this is 7 marbles. Okay, ये कितनी गोलियां हैं कांच की, 7। कितनी गोलियां हैं, 7 गोलियां हैं, यानी 7 मार्बल्स हैं। सो एडिशन मीन्स पुटिंग द थिंग्स टुगेदर एंड काउंटिंग अगेन। इसको और इसको हमने एक साथ रख दिया और इसको हमने फिर काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट वी गेट 7 marbles. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन. डियर स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर we see Kriti has 2 cookies. How many cookies Kriti has? 2 cookies. And Ricky has 3 cookies. If you are asked how many cookies they have in total, you will say 1 2 3 4 5. You will make 2 cookies and 3 cookies together, 1 2 3 and 2 of Kriti. So 1 2 3 4 5, and if you write in numbers, this is 2 and this is plus this is 3 is equal to 5. This process is called addition. Clear? So addition is finding the sum or the total by combining 2 or more things. में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके लिख दें, एक साथ लिख दें, तो वही क्या कहलाता है बेटा, वही हमारा एडिशन कहलाता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन. क्लियर? सो इन दिस एग्जांपल this is one mango and this is another. If we want to add these 2 mangoes, how we will add? We will put one plus sign, and now it will become 2 mangoes. So this is 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. So the sign
the sign used for addition, the sign used for addition is called प्लस, इज कॉल्ड प्लस। मीन्स बेटा एडिशन के लिए जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं, एडिशन के लिए जो साइन यूज़ कर रहे हैं ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। Dear students, now we will solve problem based on addition. Question number 1, count and write, then add and tick the correct answer. सबसे पहले हमें क्या करना है? First we have to count the objects or things and we have to write them in this box. After that we have to add that number and what will we get in answer? We have to choose correct option. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन ऑब्जेक्ट्स को हमें काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद उन नंबर्स को नंबर के फॉर्म में लिखना है ना, उसके बाद उन नंबर को ऐड करके जो इसमें से सही ऑप्शन हो, जैसे 3 ऑप्शन दिए गए इसमें, जो सही ऑप्शन हो उस पर क्या करना है? आपको टिक लगा देना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सो दीज आर 3 एप्पल्स, सो वी विल राइट 3 इन दिस बॉक्स एंड दीज आर 2 एप्पल्स। ओके, सो 3 + 2 is equal to 5. So 5, 6, 8 कौन सा सही है बेटा? ये सही है। इस पर हम लोग क्या लगा देंगे? ऐसे टिक लगा देंगे। इन दिस क्वेश्चन these are 3 bananas, so we will put 3 in this box and this is 1 banana, so 3 + 1 is equal to 4. 3 + 1 is equal to 4. So we will tick on 4. Clear? In this way you will solve rest of the questions. Clear? This is question number 2. The question is check the addition, then put a tick correct or incorrect. सबसे पहले हमें जितनी भी चीज़ें इसमें हैं उसको क्या करना है? काउंट करना है। फिर ये जो फाइनल बॉक्स है यानी लास्ट वाला जो बॉक्स है उससे मैच कराना है कि इस बॉक्स में जितना हमने काउंट किया सही है। जैसे पहले एग्जांपल को लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड हियर 1 2 3 4 5 मीन्स दिस इज करेक्ट, सो वी विल पुट करेक्ट साइन। इफ वी फाइंड इनकरेक्ट then we will put cross sign. Okay, now we come to question number B. This is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, this is correct. Now in question number C, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is incorrect because this is 9. Okay, in this way you will put correct or incorrect sign in this box after counting the objects. Question number 3, add the numbers. In this question we have to add the numbers. ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? सम हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम क्या आएगा उसी को हमें देखना है। ठीक है, सो कैसे ऐड करते हैं? This is 3. We will make 3 lines 1 2 3, and this is 4 1 2 3 4. So if you are asked total how many lines are here? 1 2 3 4 5 6 7. Then 1 2 3 4 5 6 7. That means your answer is 7. Okay, in question number F, in first circle there is 4 and the second circle there is 4, so we will make 1 2 3 4 1 2 3 4. So 1 2 3 4 5 6 7 8, your answer is 8.
Okay, in this way you will fill all the circle after adding the number. Little genius, इसको हम देखते हैं बेटा. Fill in the blanks. So this is 3 plus empty box is equal to 5. अब बेटा ये 3 है प्लस ये बॉक्स क्या हमारा फिल नहीं है, कोई भी नंबर इसमें फिल नहीं किया गया है, और ये किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है. ठीक है, इसका सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है. तो 3 में हम कौन से नंबर को ऐड कर दें. सपोज दैट दिस इज 3 और यहाँ पे मिल हमें क्या रहा है 5. 1 2 3 4 5. ओके, तो 3 में हम कौन से नंबर को ऐड कर दें कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए, 5 मिल जाए. तो 3 और ये क्या है 5, तो 3 तो हमारे पास है ही, 3 तो हमारे पास है ही पहले से. और क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए 5 बनाने के लिए. हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2. ठीक है, ऐसे ही 1 है, 1 में कितने को हम ऐड कर दें कि 8 हो जाए. तो 8 क्या है हमारा आंसर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास है कितना 1 है. क्या है, एक बॉक्स में 1 है, दूसरे में हमें मालूम नहीं है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 तो हमारे पास है ही, तो 1 को हम निकाल देते हैं. और कितना ऐड करना 1 2 3 4 5 6 7. तो हम जब 7 ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 8 के इक्वल हो जाएगा. इस तरीके से हम इन बॉक्सेस को फिल करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एडिशन ऑन अ नंबर लाइन. पहले एग्जाम्पल में हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ए इज 1 + 4 इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया है उस नंबर पे सबसे पहले हम अपने पेन या पेंसिल को पुट करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है बेटा 1 है, तो 1 पे हमने रखा. ठीक है, 1 पे यहाँ पे हमने रख दिया. फिर उसके बाद +4 है, कितना है +4. अब यहाँ से हम जंप करेंगे कितनी बार, 4 टाइम. कितनी बार जंप करना, 4 टाइम. 1 2 3 4. अब हम कहाँ पहुँच गए 5 पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में क्या है 3 + 6. तो हम अपनी पेन को कहाँ रखेंगे, 3 पे रखेंगे. क्लियर, 3 पे हमने पेन को रख दिया. अब जंप क्या करना है, कितना जंप करना है 6 टाइम. 1 2 3 4 5 6. कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए 9 पे पहुँच गए. तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा. इसी तरीके से 2 + 6 we will put our pen at the position of 2 and now we will jump 6 टाइम. कितनी टाइम, 6 टाइम हमको क्या करना है, जंप करना. now we will jump 6 टाइम. 1 2 3 4 5 6. your answer is 8. in this way you will solve how to represent the addition on the number line. Our next topic is adding 0 and 1. Means if we add 0 and 1 in any number, what we will get in the result. Means किसी भी नंबर में अगर हम 0 या 1 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ सकता है, रिजल्ट क्या हमें मिलता है. ठीक है, सपोज दैट वी हैव 5. if we add 0 in 5, if we add 0 in 5, our result will be 5. if we take another example means 9 and add 0, what we will get, we will get 9. this means if we add 0 in any number, the result is the same number. it means when we add 0 to a number, the answer is the same number. मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर रिजल्ट में हमारा आता है. अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, सपोज दैट दिस इज 5 एंड वी ऐड 1 in 5, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 6. एंड इफ वी ऐड 9 + 1, व्हाट विल गेट, वी विल गेट 10. मीन्स व्हेन वी ऐड 1 in any number, we get the number that comes after. मीन्स किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो उसके बाद जो भी नंबर आता है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. जैसे 10 में 1 ऐड करना है तो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है बेटा, 11 आता है. द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वी हैव टू ऐड
these numbers. After that we have to tick the correct answer. So if we add 0 in 5, if we add 0 in 5, so if we add 0 in any number, the answer is the same number. So the same number is 5. यानी किसी नंबर में अगर हम बेटा 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है, वही नंबर खुद आ जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती. 5 में हमने 0 ऐड किया तो 5 ही आएगा. ठीक है. 3 + 3, 3 + 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6. योर आंसर इज 6. ठीक है. इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को ऐड करके उनके जो आंसर हैं उन पे टिक लगाना है. ठीक है. नाउ वी विल नो अबाउट एडिशन फैक्ट. एडिशन फैक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन वी ऐड द सेम नंबर्स इन एनी ऑर्डर द नंबर डज नॉट चेंज. When we add the same numbers in any order, the answer does not change. Means अगर बेटा ये 2 है और ये +1, तो 2 + 1 जब हम ऐड करेंगे तो 2 को जब हम 1 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा. 2 + 1 3. या इसी को अगर हम लिख दें 1 + 2, 1 + 2, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आ गया. यानी कि हमने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तब भी हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आई. हमारे आंसर में कोई चेंजिंग आई नहीं आई. इसी को बोलते हैं एडिशन फैक्ट. जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3 मार्बल्स है, ये 4 मार्बल्स है. पहले 3 मार्बल्स को हमने पुट किया, बाद में 4 मार्बल्स को पुट किया, तो 3 + 4 कितने के बराबर बेटा? कितने के इक्वल है? ये 7 के है. अब हम क्या करेंगे, 4 मार्बल्स को पहले रख देंगे और 3 मार्बल्स को बाद में रख देंगे. तो 4 मार्बल्स + 3 मार्बल्स ये भी क्या है? 7 के इक्वल है. इस आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आई है. क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द नंबर्स. सो 3 + 4 एंड 4 + 3 = 7 होता है ना. 2 + 6 एंड 6 + 2 = 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है. और 6 + 2 भी क्या होता है? 8 होता है. सो 2 + 6 = 8 एंड 6 + 2 is also equal to 6 + 2 is also equal to 8. ठीक है. 7 + 2 is equal to 9 and 2 + 7 is also equal to 9. So we'll put 9 here. In this way you will solve this and all these questions. In this way you will solve all the questions. Clear?